Hello and welcome to Real Academy. This is Professor Sachin Dubey and we'll be dealing with the subject physics today. I'm an electronics and telecommunication engineer teaching kids physics for the last 10 years. Been into training kids into robotics at the lower level. I've been into robotic championships at IISc Bangalore and IIT Delhi. And physics is basically the love of my life. And today what I'll be doing is I'll try to make this subject as easy as possible for you. But in the meanwhile, what we'll try to do is we'll try to grab or absorb maximum concepts with the least effort that we have to put in. Okay. So before I go ahead with the subject, actually, let me take time out and talk to you about a little branches, small list of branches that exist in physics. Physics में क्या क्या exist करता है थोड़ी सी नजर उस पर डालते हैं. So physics as a subject has a major branch called as mechanics. Okay. Then there is electrostatics. Then there is magnetism. After that, there is something called as optics. One of the major branches of physics is nothing but thermodynamics. All right. Then there is astrophysics. And there are many more branches. There is modern physics, there is nuclear physics, there is quantum physics. But we'll stick to this list today. हम लोग इस लिस्ट से आज डील करेंगे. इसमें से एक टॉपिक डील करेंगे. थोड़ा सा आपको अगर मैं फ्लैशबैक में लेके जाऊं, so I'll try to remind you of certain topics that you've already studied. For example, you already studied Newton's laws of motion, kinematics, that comes under mechanics. हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ पढ़ा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है. आप लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल पढ़ा है, वो मैग्नेटिज्म में आता है. इसके अंदर बायो-सावर्ट्स लॉ, देन देयर इज सोलेनॉइड व्हिच कम्स अंडर मैग्नेटिज्म. रिफ्लेक्शन कम्स अंडर ऑप्टिक्स. हीट चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, एंथैल्पी पढ़ा है, वो थर्मोडायनामिक्स में आता है. देन देयर इज ऑल दैट यू नो अबाउट स्पेस comes under astrophysics. Okay, so all of these chapters, all of these subsections are basically form the major unit which is called as physics. आज जो टॉपिक्स हम डील करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स. एंड बिफोर वी स्टार्ट विद स्केलर्स एंड वेक्टर्स, आई वांटेड टू टेल यू कि इन सारे टॉपिक्स को मास्टर करने के लिए आपको आज दो नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे. यू हैव टू मेक टू न्यू फ्रेंड्स टुडे एंड दे आर why and how. Okay, the more why and the more how you ask yourself, the subject will go on becoming easy for you. जितना आप why और how से जुड़ के रहोगे, उतना सब्जेक्ट फिजिक्स आपके लिए इजी होते जाएगा, उतना आसान होता जाएगा, उतना सीखने में मजा आएगा. ठीक है. Now let us take up a very small example. If a pen drops in the air, it drops to the floor, it goes towards the earth. If I ask you what is the reason behind it, you all can try to answer you in the comment section. If I ask you what is the reason behind it, all of you will jump out to say it is gravitation. But who invented gravitation? When did he do that? अच्छा, ग्रेविटेशन के इन्वेंशन के पहले ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता था? क्या वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता था? नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नीचे गिर रहा था. लेकिन ग्रेविटी कॉइन होने के पहले, ग्रेविटी इन्वेंट होने के पहले उसको ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट के नाम नहीं दिया जाता था. नो वन थॉट अबाउट दैट. सो द मोर यू थिंक, फिजिक्स गोज ऑन बिकमिंग इजियर फॉर यू. And that is the way we are supposed to learn, and we'll try to experiment to the best of our skills today कि ये मेथड काम करता है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर मेथड काम करता है कि नहीं, पूछते रहना, सीखते रहना, जानते रहना काम करता है कि नहीं. ठीक है. सो आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको पहले भी बोला is scalars and vectors. But before I jump on to scalars and vectors, there is something more important that we all need to know. What is that? The concept of physical quantity. हम सबको फिजिकल क्वांटिटीज क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज के ही
दो मेजर सेक्शंस जो हैं वो हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज के ही पार्ट्स बनते हैं। एक entire family of quantities is called as scalar quantities. So scalars, an entire family of quantities is basically vector quantities, तो है vectors। तो scalars और vectors क्या है, ये जानने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बॉस फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसका डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पे। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। So in simple words, we'll say that all the quantities that can be measured and expressed with the help of magnitude and unit are called physical quantities। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो और मेजर करने के बाद आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो किन टर्म्स में? आप एक्सप्रेस करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। उसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल नंबर, और कुछ तो उसका यूनिट होना चाहिए। अगर आप ऐसे कर पाते हो तो डेफिनेटली दैट क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से देयर इज अ बॉक्स केप्ट हियर। ये एक बॉक्स है और लेट अस आल्सो से कि somehow we are able to measure the length of that box. Let us say this length L is equal to 15 centimeter. Length कितना लिया? 15 centimeter. So here the quantity length is a physical quantity. Why? Because 15 is the magnitude and centimeter is the unit जिससे हमने उसको find out कर लिया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let us take up a circle here जिसका रेडियस जो है लेट अस से वो r है। ऐसे में इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। लेट अस से इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो आता है 50। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एरिया इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। वाई? बिकॉज 50 मीटर स्क्वायर को ध्यान से देखो, उसमें मैग्नीट्यूड मतलब 50 भी आ गया और मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट भी आ गया। तो हर वो क्वांटिटी जिसको कि आप मेजर कर सकते हो, जिसका कि एक मैग्नीट्यूड है मैथमेटिकल नंबर और उसके आगे एक यूनिट है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज की जो दो मेजर फैमिलीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की जो दो मेजर फैमिलीज हैं वो हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वो हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। सवाल उठता है कि ये दो डिफरेंट फैमिलीज हैं क्या? स्केलर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है ना? So let us try to understand that now. I hope you have understood this much. Moving ahead. Meanwhile, you can also like, subscribe, and share things on our channel. Do hit the bell icon so they can keep getting content from Real Entertainment. And please give me your suggestions on the content that you're listening to on the comment section. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बताते रहिएगा। कुछ डाउट हो तो पूछते रहिएगा। आगे चलते हैं। And let us try to get down to the basic discussion today, which is nothing but the difference between scalars and vectors. हम लोगों को स्केलर्स और वेक्टर्स का बेसिक डिफरेंस जानने की सख्त जरूरत है। ठीक है? सो वी आर हियर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो विल गो स्टेप बाय स्टेप
कोई जल्दी नहीं हम लोगों को, और हम शुरू करेंगे डेफिनेशन, स्केलर का डेफिनेशन लिखेंगे। ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी completely expressed using only magnitude, using only magnitude are called scalar quantities, are called scalar quantities। ऐसे क्वांटिटीज जिनको कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एक बार दोबारा बता दूं, नंबर, एक मैथमेटिकल नंबर के जरिए अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर का डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन है ऑल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर both magnitude and direction for the complete meaning are called vector quantities। ऐसे क्वांटिटीज कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ नहीं होता, हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वांटिटीज जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ नहीं होता, उसके साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आई नो अभी आपको कुछ डाउट्स होंगे, ठीक से क्लियर नहीं होगा, सो आई एम हियर फॉर दैट। विल टेक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ स्केलर कैन बी टाइम or temperature, and example for vectors would be force or in that matter let us say position। ओके, अब पूछो कैसे, टाइम से शुरू करते हैं। अब अगर मुझे किसी से पूछना है कि भाई आप जब घर से निकले तो घर से निकलने के बाद आपको आपके सबसे नजदीकी पार्क जाने के लिए कितना समय लगा, और किसी ने मुझे बोला कि सर मुझे लगा 9 मिनट, इफ आई रिक्वायर 9 मिनट्स टू गो टू द पार्क, इफ आई रिक्वायर 9 मिनट्स टू गो टू द पार्क। So what he has done, he has simply told me how much time he has required। उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि सर मुझे 9 मिनट लगा इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नहीं। तो वहां पे सिर्फ 9 वाज इनफ, डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, तो वो स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार है, डॉक्टर आपको बोलता है आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर ऐसा आपको डॉक्टर बोलता है तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला, डॉक्टर ने आपको 101 डिग्री मतलब मैग्नीट्यूड मेंशन किया। डॉक्टर ने आपको बिल्कुल नहीं बोला कि बेटा तेरे को 101 नॉर्थ ईस्ट बुखार है या साउथ वेस्ट बुखार है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन को कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, डायरेक्शन कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से अपना काम बन जा रहा है। तो ऐसे क्वांटिटीज जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसे क्वांटिटीज जहां पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से यू आर सिटिंग हियर राइट नाउ इन योर हाउस, अभी जहां कहीं आप घर में बैठे हो, ठीक है, और मैंने आपसे सवाल पूछा बेटा आप जहां बैठे हो वहां से आपका सबसे नजदीकी विंडो कहाँ है। सेइंग कि मेरा विंडो 6 कदम पे है इज नॉट इनफ। क्यों? बिकॉज वो 6 कदम पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है। अगर आप मुझे बोलोगे सर मेरा विंडो 6 कदम पे है, इट इज एट 6, let us say 6 meters, 6 meters in the नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस तरफ जाना है। मुझे समझ में आएगा कि मुझे
इस तरफ जाना और कितना जाना है, मुझे 6 मीटर जाना है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताया और मैं 6 मीटर यहाँ चला गया तो देर आर चांसेस कि मैं कहाँ पहुंच जाऊँ, बाथरूम में पहुंच जाऊँ, जहाँ मेरा कोई काम ही नहीं है, मुझे तो विंडो चाहिए था, है ना। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन, यू हैव टू मेंशन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। जहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ कि पोजीशन ये स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है और पोजीशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। पोजीशन स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है और पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। लेट अस टॉक अबाउट फोर्स। फोर्स का सिचुएशन ले लिया हमने, ठीक है। इमेजिन देयर इज अ बॉक्स केप्ट हियर, एक सरफेस पे एक बॉक्स रखा है और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई साहब दो फोर्स लग रहा है, फोर्स 1 लग रहा है 20 न्यूटन का और फोर्स 2 भी लग रहा है 20 न्यूटन का। तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है। अब आप में से जितने लोगों को लगता है कि आंसर 40 न्यूटन है, कमेंट सेक्शन में जितने लोगों को लगता है आंसर 40 न्यूटन है, तो आपका आंसर भाई साहब गलत है। एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस अगर लग रहे हैं 20 न्यूटन के, तो आंसर 40 न्यूटन इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू सिचुएशंस। देखो मैं दो सिचुएशन दिखाता हूं आपको। अगर F1 और F2 दोनों इस तरफ से लग गए 20 न्यूटन, तब तो 40 न्यूटन करेक्ट है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपका F1 इस तरफ से लगा और अगर आपका F2 इस तरफ से लगा, तो भाई साहब आई एम सॉरी टू से बट योर फोर्स इज हाउ मच, योर फोर्स इज 0 न्यूटन, है ना। F1 अगर यहां से लग गया और F2 यहां से लग गया तो आपका फोर्स क्या हो गया, 0 न्यूटन लग गया। इसका मतलब क्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, आई एम ट्राइंग टू से दैट इस केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गिव मी अ यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो वंस अगेन एक बार अपन रिपीट करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ होता है कंप्लीट मीनिंग के लिए। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है कंप्लीट मीनिंग के लिए। अच्छा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट के टर्म्स में, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सो फार अभी तक हमने तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़े, स्केलर और वेक्टर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने एग्जांपल्स तो देख लिए, हमने समझ भी लिया कि भाई इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें सो देयर इज समथिंग दैट वी आर स्टिल येट टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी ट्राई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज, द मेजर डिफरेंस। सो मेजर डिफरेंस भाई साहब ये है कि स्केलर्स कैन बी simply added, subtracted, multiplied by regular algebra। जो आपका रेगुलर अरिथमेटिक टेक्निक्स हैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के, उससे आप स्केलर का कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन वेक्टर्स हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, वेक्टर्स हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। और क्यों, वो हमने अभी अभी देखा बॉक्स वाले एग्जांपल में। जब तक आप डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते दो वेक्टर्स का, तब तक उनके ऊपर आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। वेक्टर्स हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर देयर ऑपरेशंस। आई होप ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। ये जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े, डेफिनेशन, स्केलर वेक्टर्स, एग्जांपल्स, स्केलर वेक्टर्स, and one major difference in terms of operation of scalars and vectors. I hope this much is clear to all of you. On that note, without wasting much time, let me take you a little further.
Let us try to understand an important aspect here, which is called as representation of vectors. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? We're trying to understand representation of vectors. और इसके लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि वेक्टर्स होते किस तरह से. So let me give you some simple hints here. सबसे पहली बात, vectors have a starting and a finishing point. Okay, वेक्टर्स का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है. दूसरी बात, starting point is shown by a dot and finishing point is shown by arrow. स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग एक डॉट से दिखाते हैं और फिनिशिंग पॉइंट किससे दिखाते हैं? फिनिशिंग पॉइंट हम लोग दिखाते हैं एरो से. ऑलराइट, एंड फाइनली distance between these two is the magnitude. स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. ओके, तो हम लोग जो सबसे पहला वेक्टर ले रहे हैं, okay, we are trying to see how will you draw vector AB bar. Vector AB bar, this is how you show vector. कैसे दिखाएंगे आप वेक्टर? फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर एंड एरो अबाउट इट. दिस इज वन वे. या फिर सिंपली आप फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो. एरो नहीं बनाया तो भी चलता है. ओके, अभी इसका मतलब क्या? व्हाट डज दिस मीन? AB बार का मतलब क्या है? लेट अस सी. सो A here guys is nothing but the starting point and B is nothing but the finishing point. तो A क्या है हमारा? A हमारा starting point है और B हमारा finishing point है. तो डेफिनेशन के हिसाब से और रूल के हिसाब से हमारा वेक्टर कैसे बनना चाहिए? हमारा वेक्टर कुछ इस तरह से बनना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक, है ना? सो स्टार्टिंग पॉइंट किससे दिखाया हमने? डॉट से दिखाया. फाइनल पॉइंट किससे दिखाया हमने? एक एरो से दिखाया. इस तरह से हमारा वेक्टर बना. ओके, ऑल्सो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट का जो लेंथ है, दिस लेंथ इंडिकेट्स व्हाट? दिस लेंथ इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड. क्या इंडिकेट कर रहा है ये मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है, कितना आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे BA बार बनाना होता तो, अगर यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो AB बार नहीं होके, ध्यान दो, BA बार या फिर सिंपली BA बार अगर ये होता तो, इन दैट केस कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी. हमारा A पॉइंट तो यही है अभी भी, ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है. ठीक है, सो हमारा जो वेक्टर बनेगा बॉस, वो अब इस तरह से बनेगा. Okay, so your starting point is indicated by a dot and your finishing point is indicated by an arrow. ये क्या है? ये आपका वेक्टर BA बार है. This is vector BA बार. Also, once again, इसका जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक का, what is that? That is nothing but the magnitude. What is it? It is nothing but the magnitude. So that is how you represent a vector. तो हमने क्या क्या सीखा आज? फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन सीखा, उसके दो फैमिली सीखे, स्केलर वेक्टर्स. स्केलर्स का डेफिनेशन सीखा, वेक्टर्स का डेफिनेशन सीखा, स्केलर वेक्टर्स का एग्जांपल देखा, स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंस देखा,
और वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के फिर लेक्चर खत्म करता हूं मैं। जो डॉट है उसको आप और क्या बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेल, और जो एरो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड। तो डॉट को आप टेल ऑफ वेक्टर बोल सकते हो और एरो को आप हेड ऑफ द वेक्टर बोल सकते हो। और स्केलर वेक्टर्स में सीखने से बहुत कुछ है, बिलीव मी, दिस इज नॉट अ चैप्टर एक्चुअली, दिस इज नॉट अ चैप्टर, इट इज बेसिकली द टूल्स। स्केलर वेक्टर क्या है? स्केलर वेक्टर्स आर टूल्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड physics in detail, and for more such lectures and more such sessions, come and join us at Real Academy. Do not forget to like, share and subscribe. Also hit the bell icon. Thank you for being a wonderful audience. See you soon.